مہربانی فرمائیں جو احتیاطی تدابیر آپ کی خدمت میں بتائی گئی ہیں ان پر عمل کریں، محدود رہیں، اپنا میل ملاپ بھی محدود رکھیں تاکہ آپ کے اور آپ کے خاندان اور آپ کے بچے محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب العالمین، یہ جتنے نمازی یا حاضر ہیں ان سب کی نماز قبول فرما، ان سب کی قربانی قبول فرما، اور اس قربانی میں جو تو نے ہمیں پیغام عطا فرمایا ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، پاکستان کی خیر فرما، دین اسلام کی خیر فرما، اور یہ سال اس لحاظ سے بھی مختلف ہے کہ 5 اگست کو بابری مسجد کو شہید کرنے کے بعد وہاں رام مندر کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، اور یہ ایسا سال ہے پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کے جذبات کا استحصال ہے، اور 5 تاریخ کو جو غیر قانونی سلامتی کونسل کی قرارداد کے خلاف جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں اور کشمیریوں کے جذبات کو مجروح کیا گیا ہے، اس پر بھی پوری قوم یوم استسقاء کا ارادہ رکھتی ہے۔ یا رب العالمین، کشمیریوں کی، نہت کے کشمیریوں کی جن پر ظلم اور جبر ہو رہا ہے ان کی مدد فرما، ان کو ہندوستان کے جبر اور ظلم سے، ناانصافیوں سے آزادی عطا فرما دے، ان کی حق خود ارادیت کی تحریک کو کامیابی عطا فرما دے۔ یا رب العالمین، پاکستان کو ہمہ قسم کے جو چیلنجز ہیں، مشکلات ہیں، ان پر غلبہ پانے کی ہماری مدد فرما، ہماری رہنمائی فرما۔ جتنے بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ وہ لوگ جو ان دنوں میں ہم سے جدا ہوئے ہیں، یا رب العالمین ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات بلند فرما دے۔ یا رب العالمین، یہ 4-5 ماہ بہت مشکل گزرے ہیں، جن کے کاروبار متاثر ہوئے ہیں، یا رب العالمین ان کے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو رازق ہے، ان کے مناسب رزق حلال کا بندوبست فرما دے۔ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ یا رب العالمین، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، اور ہر ہمارے دل کی جائز خواہش پوری فرما دے۔ صراط مستقیم پر رہنے کی توفیق عطا فرما، محبتوں میں اضافہ فرما، اور ایک دوسرے کو بہتر انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ ان آستانوں کی رونق کو تا قیامت شاد و آباد فرما، ملتان کی خیر فرما، پاکستان کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی ہے پاکستان کو۔ ہمارے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اب مریضوں کی تعداد کم ہونی شروع ہو گئی ہے، ہسپتالوں میں رش کم ہو رہا ہے، وینٹیلیٹر پہ جو مریض تھے وہ اب کم ہو گئے ہیں، اموات کم ہو گئی ہیں۔ اگر ہم نے محتاط کی اور اس عید پہ ہم نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تو ہمیں اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا، اور اگر ہم سے غفلت ہوئی تو ساری محنت جو ہے وہ رائے گاں بھی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے میری اپیل ہے کہ جو ایس او پیز آپ کی خدمت میں جن کی گزارشات کی گئی ہیں ان پر عمل کیجیے۔ دوسری ایک گزارش میری یہ ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے
کہ 5 अगस्त को जो हिंदुस्तान का पूरा 1 साल मिलिट्री सीज का और डबल लॉकडाउन का मुकम्मल होगा, पूरी पाकिस्तानी कौम, पूरा कश्मीर का, आज़ाद कश्मीर का रहने वाला कश्मीरी, मकबूजा जम्मू और कश्मीर में रहने वाला कश्मीरी और दुनिया के किसी मुल्क में पाकिस्तानी और कश्मीरी आबाद हैं, वो यकज़बा होकर 5 अगस्त को बतौर यौम इस्तेसाल मनाएंगे, क्योंकि ये इस्तेसाल का साल है। इसमें जो कश्मीरियों का इस्तेसाल हुआ, उनका तशख़्ख़ुस मिटाया गया, उनका झंडा गिराया गया, उनके हकूक़ छीने गए, उन पर जबर मुसल्लत किया गया। मस्जिद श्रीनगर में शायद ईद का इज्तिमा न हो पाए, मस्जिदों को ताले लगाए गए और इस 5 अगस्त को बीजेपी की आरएसएस सोच रखने वाली सरकार बाबरी मस्जिद को मिस्मार करके राम मंदिर की बुनियाद रखने जा रही है। पूरी पाकिस्तानी कौम और पूरी उम्मत मुसल्लमा उसकी मजम्मत करती है और मेरी दरख्वास्त होगी पूरी उम्मा से कि बाबरी मस्जिद की शहादत और कश्मीरियों के साथ यकजहती के तौर पर हर ख़ानदान, हर फर्द, हर बच्चा, हर बुजुर्ग, मस्तूर, जहाँ जहाँ बैठे हैं, बैरून मुल्क या पाकिस्तान के अंदर, यौम इस्तेसाल मुनक़िद करें। हुकूमत ने एक वाज़े एक्शन प्लान मुरत्तब किया है और सब सियासी जमातों से भी मेरी अपील है कि इस मसला हमारा मुश्तरका है, वो भी अपना हिस्सा इसमें शामिल करें और पूरी दुनिया को पैगाम दें कि कश्मीर के मसले पर और कश्मीरियों के साथ पूरी कौम यकजहती का इजहार कर रही है। और इंशाअल्लाह, जैसे मैंने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ये हाईवे जिसको हम कश्मीर हाईवे कहते हैं, ये इंशाअल्लाह श्रीनगर हाईवे कहलाएगा, क्योंकि हमारी मंजिल श्रीनगर है। इंशाअल्लाह वो दिन आएगा, अल्लाह के हुक्म से आएगा, कश्मीरियों की कुर्बानी से आएगा, उन निहत्ते कश्मीरियों के लहू और कुर्बानी से आएगा जिन पर नाजायज़ सीज़ फायर वायलेशन से बमबारी होती है, शेलिंग होती है, उन पे गोलियां बरसाई जाती हैं, उन बच्चों, उन माजूरों, उन ख़वातीन की आहों से इस सरकार को शिकस्त होगी और कश्मीरियों को फतह होगी। पाकिस्तानी कौम पैगाम देना चाह रही है, तुम तन्हा नहीं हो, हम आपके साथ हैं, हम आपकी कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। 7 दहाइयों की कुर्बानी जो है आपकी लाजवाल है और उसमें एक नए बाब का इजाफा होने चला है और पूरी कौम आपके साथ है। तीसरी चीज़ जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मईशत एक मरतबा फिर कोरोना के जो दबाव में आई थी, उसकी वजह से पूरी दुनिया की मईशत आई। आपने देखा कि ग्लोबल इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, लेकिन अब अल्लाह के फजल करम से वो फिर उस मायूसी से बाहर निकल रही है। और जो कल वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में एक इजलास हुआ, जो उन्होंने कंस्ट्रक्शन का पैकेज दिया था, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और सस्ते घरों की तामीर का जो उनका वादा था, उसमें एक बड़ी ज़बरदस्त पेशरफ्त हुई है और मुल्क के 13 बहुत बड़े डेवलपर्स और बिल्डर्स ने ये फैसला किया है कि अगले 3-4 माह में वो 1300 अरब इस सेक्टर में इन्वेस्ट करने। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ रोजगार के मौके पैदा होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वो सनतें जो बंद थी, चाहे वो स्टील की है, चाहे वो सीमेंट की है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन की है, चाहे वो ईंटें हैं, चाहे वो अपना सैनिटरी इक्विपमेंट है, इन सब को फ़रोग मिलेगा और उससे पाकिस्तान की मईशत को एक किक स्टार्ट दोबारा मिलेगा। इंशाअल्लाह दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज रखे। यौम इस्तेसाल की क्या शक्ल होगी और उसमें क्या रैलियां निकाली जाएंगी, क्या सेमिनार होंगे, क्या हुकूमत इसमें क्या करेगी और अपोजिशन से क्या? मदर साहब, यौम इस्तेसाल में सुबह 1 मिनट की खामोशी होगी 10 बजे। उसके बाद वज़ीर आज़म 5 तारीख को
आज़ाद जम्मू कश्मीर की असम्बली से मुखातिब होंगे। सदर पाकिस्तान इस्लामाबाद में एक रैली की क़यादत फरमाएंगे। जितने वज़राए आला हैं वो अपने अपने सूबों में रैलियों की क़यादत फरमाएंगे। हमारी दरख्वास्त है कि जितने मेंबरान पार्लियामेंट हैं, सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं, वो भी अपने इलाकों में उन रैलियों में शामिल हों। सिविल सोसाइटी अपना रोल प्ले कर रही है। हमने सेमिनार्स नेशनल इंटरनेशनल मुनक़िद होंगे। ऑपैड्स लिखे जाएंगे इंटरनेशनली नोन न्यूज़पेपर्स में। कनाडा में एक ज़बरदस्त कार रैली का एहतमाम किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है प्रोटेस्ट होंगे जगह जगह पर, लेकिन यूरोप में वो लॉकडाउन की वजह से कुछ SOPs का नफाज है। तो उन SOPs को सामने रखते हुए जो कश्मीरी डायस्पोरा है, पाकिस्तानी हैं, वो अपना इजहार ज़रूर करेंगे। इसी तरह टेलीविज़न के इंटरव्यूज़ हैं, नेशनल इंटरनेशनल लाइन ऑफ कंट्रोल के विज़िट्स हैं। मैं ख़ुद इंशाअल्लाह 3 तारीख को लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाऊंगा और पाकिस्तान के इलाके में खड़े होकर इंशाअल्लाह भारत को एक वाज़े पैगाम दूंगा। और पूरी कौम इंशाअल्लाह 5 तारीख को जिस जज्बे से मनाएगी, पूरे हिंदुस्तान को एक पैगाम जाएगा। मुल्तान का मीडिया भी जी इंशाअल्लाह 5 तारीख को रिलीज का। मैं बेहद मशकूर हूँ मुल्तान के मीडिया का कि ये आपका एक जिस कौमी ज़िम्मेदारी और जज्बे का आप मुजाहरा कर रहे हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुल्तान का मीडिया एक बहुत ज़िम्मेदार मीडिया है और आपका तारीख़ी किरदार रहा है, आज के नहीं हमेशा से, और अल्लाह के फजल से आपने उस रवायत को कायम रखा है। और आखिरी चीज़ मैं कहता चलूँ, जो हमारी आखिरी नशिस्त हुई थी, उसके बाद वज़ीर आज़म से मेरी बात हुई और पूरे जनूबी पंजाब के मेंबरान कौमी असम्बली की मैंने वज़ीर आज़म से मुलाकात करवाई और उस मुलाकात के बाद वो अबहाम ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह मुल्तान में जनूबी पंजाब का सेक्रेटेरिएट भी बनेगा और इंशाअल्लाह जो रूल्स ऑफ बिज़नेस हैं उसमें वज़ीर आला ने तरमीम की इजाज़त दे दी है और उन रूल्स ऑफ बिज़नेस के तहत अब जो सेक्रेटरी तैनात होंगे, सेक्रेटरी हेल्थ है, एजुकेशन है, जो भी हैं, वो कुल्लुहुम बाख्तियार होंगे और कोई जनूबी पंजाब की फ़ाइल अब लाहौर नहीं जाएगी। इतने बाख्तियार होंगे कि लोगों की दहलीज़ पर उनके मसाइल हल करेंगे। इंशाअल्लाह ये भी फ़ैसला हो गया है और आप देखेंगे मज़ीद भी इस तरफ इक़दामात होंगे। आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, आपकी रहनुमाई का, आपकी गाइडेंस का। इंशाअल्लाह देखिए हमारी कोशिश है, आप जानते हैं कई दहाइयों से नेक नीति से लोग आवाज़ उठाते रहे, पेशरफ्त ना हो सकी। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है, इसको आगाज़ समझिए अपनी मंजिल की तरफ, और इंशाअल्लाह मंजिल क्या है? एक अलहदा जनूबी पंजाब का सूबा। शुक्रिया।